Good morning. Good morning. And welcome to Khudabakhsh Library once again. Dear students, we are here today to listen to a scholar from California University. She is a scholar of history, as you all know. Earlier also, we were fortunate to listen to scholars from different universities of the world who have delivered lectures over here in this seminar hall, and you were there to listen to them. Today we have with us Aparajita Das. I have written doctor in her name to be a doctor, a future doctor. She is pursuing her PhD from California University. And as you all know, Khudabakhsh Library possesses a number of rare manuscripts on Indian history, inviting scholars from different corners of the world to work on them. She is also here in connection with her researches and all the manuscripts available in our library. She is well aware with the languages of medieval Indian history, that's Persian. Basically, more of the sources are there in Persian language only. So a student of medieval Indian history, if he or she is well aware with the language, then it's very useful for her, for the researchers, to go through the original sources, because the original sources mostly are in Persian. This was the language in vogue in those days. The library has been publishing significant manuscripts on Indian history and culture. Recently, the library has published the English translation of Sirat-e-Feroz Shahi, as you all know, English translation. The manuscript is in Persian, and the original manuscript was published in facsimile some 30 years before. Now, its translation is available, so the project completes. Yet another work related to medieval Indian history is the first Hindi dictionary of 1674. Now the history of lexicography, Hindi lexicography, dates back to 1674, when Mirza Fakhruddin compiled this Hindi dictionary, and it contains more than 3000 Hindi words. This was prepared by an emperor to teach his son Hindi through Persian. So this has also been recently published by the library. These are very rare works which you will be able to see in our library and are available in the publication section of the library for the scholars to purchase also. So now we all welcome Ms. Das, Aparajita Das, land rights in South Asia, in particular Mughal history. Today her talk will touch upon aspects of architectural patronage of temples by elites in Mughal Empire. She will cover some socio-economic and cultural features that developed in temples of North and East India through the support of Mughal rulers and their nobles. This talk will also include some references of primary sources and historians' names that may be beneficial to students and are readily available in libraries like our prestigious Khudabakhsh Library. So I welcome Ms. Aparajita Das to come and deliver a talk. This will be very useful talk for all of us. Kindly welcome her. मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप मुझे बताइए, अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं आती तो बता लीजिएगा। आदाब, हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, शुक्रिया मैडम। खुदाबख्श लाइब्रेरी जैसी उम्दा और वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी जहां इंडियन हिस्ट्री के इतने ख़ास मखतूते हैं, यहाँ शरीक होने का मौका तो मेरी खुशकिस्मती है।
शुक्रिया डायरेक्टर साहिबा, शाइस्ता मैडम, लाइब्रेरी के सारे स्टाफ, खासकर शम साहब जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, बदरुद्दीन साहब और इकबाल साहब, और सभी स्टूडेंट्स को कि उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। मेरा मौजू या टॉपिक है टेम्पल पेट्रनेज अंडर मुगल रूलर्स। एंड ऑल्दो माई मीडियम ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन हैज़ लार्जली बिन इंग्लिश, मैंने इस टॉक को एक चर्चा के तौर पे बनाया कि हम अपनी हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी मिलाकर बात करें, ज़्यादा मुनासिब होगा। तो सर हम स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं? जी नहीं, दूसरी वाली। जी 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 जी, ये शुक्रिया सर। जी सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में, इस टॉक में आई विल एम्फसाइज 2 थिंग्स। एक तो थियोरी के लेवल पे पेट्रनेज के मायने इतने मुख्तलिफ होते हैं, ज़रा उसकी बात की जाए। पेट्रनेज या हिफाजत या संरक्षण, ये बहुत तरीक़ों की हो सकती है और इसके इट कैन अज्यूम मैनी मीनिंग्स, मैनी फॉर्म्स। ये अलग अलग ऑफिशियल लेवल्स पे अलग अलग रूप में प्रकट होती है। और इसमें हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, उसका कंसोलिडेशन, एक लफ्ज़ है कि आपने उसको बाकायदा अच्छे से संभाल के रखा, जो पहले से बनी चीज़ है उसको। दूसरा, एक बड़ा स्टेटमेंट ऑफ पावर हो सकता है। आपने एक बड़ी चीज़ बनाई, वो एक स्टेटमेंट ऑफ पावर हुआ, वो आज भी हम देखते हैं। तीसरी चीज़ पेट्रनेज की होती है कल्चरल सर्कुलेशन, जिसमें हम शेयरिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स, डिफरेंट रीजनल कल्चर्स, ये सब देखते हैं। और इसका बिल्कुल ही बखास हमें एग्जाम्पल मुग़ल इंडिया में बार बार देखने को मिलता है। मतलब इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है कि कल्चरल सर्कुलेशन नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली भी मुग़लों के द्वारा यूरोप तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। चौथी चीज़ पेट्रनेज में एक जेन्युइन अप्रिसिएशन होती है, एक सिविलिटी जिसको कहते हैं, जिसको मुग़लों ने सुलह का नाम दिया, कि आप एक जेन्युइन इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी और अप्रिसिएशन डेवलप करें उन चीज़ों के लिए जो आपकी अपनी ना हो, जिनके साथ आप बड़े ना हुए हों, जो आपको घर पे शायद ना बताई जाए, पर आप उसको एक रिस्पेक्ट के तौर पे उसके साथ पेश आएँ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो पेट्रनेज में नज़र आती हैं और इस लफ्ज़ पेट्रनेज के साथ नज़र आती हैं, और इस पे थोड़ी चर्चा करने का मेरा इरादा था। ये दिखाने के लिए मैं कुछ 2-3 उदाहरण आपके सामने लाऊंगी। वृंदावन और मथुरा मेन इसमें एग्जाम्पल्स रहेंगे। हमारे पास बहुत डॉक्यूमेंट्स, बहुत प्रूफ है इसका, तो थोड़ा एम्फेसिस इस पे दिया जाएगा। राजपूताना और बंगाल की कुछ उदाहरण हैं, और एंड अगर इफ टाइम परमिट्स तो मैं एलोरा के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूँगी। नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अच्छा सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बस एक जल्दी से एक ओवरव्यू के तौर पे मेरा ख्याल है आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे कि लगभग जिनको हम कहते हैं 6 ग्रेट मुग़ल एम्परर्स, ये 6 रहे। ध्यान में ये रहे कि बाबर और हुमायूं के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था मुग़लों का। बार बार जीतते थे, बार बार हारते थे, और ज़्यादातर लड़ाई इनकी अफ़गानों से हुई, कुछ एक राजपूतों से हुई, पर अफ़गान से अकबर बादशाह के ज़माने तक अफ़गानों से बड़ी लड़ाइयाँ जारी रही। तो येलो पोर्शन जो है वो हमारा रहा बाबर हुमायूं के तहत, और अकबर बादशाह ने द ग्रीन पोर्शन दैट यू कैन सी ऑन द मैप, इट एक्सपैंडेड टिल दैट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब टुवर्ड्स द साउथ ऑफ माय मैप यू कैन सी ऑरेंज जो पार्ट है, गोलकुंडा आप देख पा रहे होंगे, आदिल शाही देख पा रहे होंगे, ये सब वहाँ कॉन्कर हुए। तो अलग अलग सल्तनतों से अफ़गान हो गए, दक्कनी सुल्तान हो गए, इनसे मुग़लों की बहुत मुठभेड़ हुई। अच्छा, आपको 4 सर्कल्स देख पा रहे होंगे, वो जनरल, जैसे मैंने कहा, वो जनरल एरियाज़ हैं जिनके एग्जांपल्स मैं लाऊंगी आपके सामने। 2 मुग़ल नोबल्स की और बात करना चाहूँगी। एक राजा मान सिंह जो आमेर से थे, और अब्दुर्रहीम खान बड़े आमिर रहे मुग़लों के। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है।
अच्छा सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जब भी आपके यहाँ हिस्टोरियंस आते होंगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स आते होंगे, वो इन चीज़ों को ज़रूर बोलते होंगे कि दो चीज़ें हिस्टोरियंस के लिए ज़रूरी होती है। एक कि वो ध्यान में रखते हैं कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरियंस ट्रीट द पास्ट लाइक द पास्ट, दैट इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ गॉन। आप किसी लेबोरेटरी में बैठ के वो दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, वो जा चुका है। आपको उसको समझने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी और थोड़ा ही समझ पाएंगे, पर इतना ज़रूर है कि हमारे पास स्पेशली खुदाबख्श लाइब्रेरी जैसी अच्छी लाइब्रेरियों में इनफ मटेरियल मिल जाता है कि अच्छा काम किया जा सके। तो वो उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसका परिपेक्ष समझते हैं। ये भी ध्यान में रखते हैं कि पास्ट में सब कुछ है, हमारी अपनी लाइफ में सब कुछ होता है, अच्छा बुरा, लड़ाई झगड़े, ओके, लड़ाई झगड़े सब समझना ज़रूर एक साथ चलता है। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे कि मैंने कहा कि पेट्रनेज या हिफाजत, संरक्षण, इसके मायने बहुत हैं। और हिस्टोरियंस, एक चीज़ तो मैंने बताई कॉन्टेक्स्ट, दूसरी चीज़ चेंज ओवर टाइम। वक्त बदलता है, परिपेक्ष भी बदलता है। तो जैसे आपने पेट्रनेज जो होता है वो भी बदलता है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेन हुआ, सरकार के पास पैसे कम हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि आसानी से चीज़ें बनने लग जाएंगी और वो चीज़ें जो पहले से जिनको संभाल के रखा जाता था उनको वो भी बदल सकते हैं। तो माली और सियासी मुद्दे इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कभी एक से नहीं रहते, वक्त के साथ बदलते हैं और इसका भी असर पेट्रनेज पे पड़ता है। अच्छा, आई वॉन्ट टू शो अ स्लाइड, तो मैं वेट करूँ या हाँ, इट जस्ट कम बैक, तो मैं वेट ही कर लेती हूँ। आपसे बस ये दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखें। ये तो एक अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लिया। दो चीज़ें आप कहीं भी हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, आपसे ये दो चीज़ें ज़रूर कही जाएंगी। कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखो, ट्रीट द पास्ट लाइक इट इज़ अ डिफरेंट कंट्री। हम जाते हैं कभी, आप ज़्यादा दूर, आप नेपाल ही चले जाएं, अलग देश है, कुछ अलग चीज़ें तो ज़रूर होंगी। और नेपाल के यूपी चले जाएं, वहाँ माहौल अलग है, चीज़ें अलग हैं, आप कुछ अलग खाएंगे, कुछ अलग तरीके से रहेंगे। हमारा पटना वापस आ जाएगी बात, आप कभी जाएं, जा पाएँ, और अगर ना भी जा पाएँ, इस पर इतना शोध हुआ है कि पढ़िएगा ज़रूर। नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में लगभग 100 से ज़्यादा, लगभग 150 के करीब वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि अकबर बादशाह ने लगभग 1000 बीघा ज़मीन, कुछ 35 गांव सपोर्ट में लगा दिए उन मंदिरों के जिनमें आज हम सारे, अगर आप विष्णु की आरती करते हैं, आप घूमने भी जाते हैं पर्यटक होके, देखते हैं। गोविंद देव टेम्पल और मदन मोहन टेम्पल बहुत बिल्कुल प्राइम एग्जाम्पल्स हैं ऑफ वैष्णव आर्किटेक्चर। अकबर का बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन ट्रेडिशन में ये रहा है कि वैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल मास्टर बहुत ही कम दिखता है। चाहे लैंड रेवेन्यू हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, चाहे रिलीजन हो, हर चीज़ को सिस्टमेटाइज करना, उसको एक मॉडल प्रदान करना कि वो सालों सालों क्या सदियों तक चलता जाए, वैसा अकबर बादशाह के बाद शायद ही कोई हुआ हो। हाँ, तो उन्होंने यही चीज़ वृंदावन मथुरा में भी की। उन्होंने पुराने छोटे छोटे जो मठ थे उनकी लैंड ग्रांट कंसोलिडेट कर दी। मैंने पहले भी बोला था, कंसोलिडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको ग्रांट मिल गई, अब आपका पैसा आता रहेगा ये मंदिर की देखभाल करने के लिए। ये सब चीज़ें उन्होंने बाकायदा बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसी करके दी कि उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी इसको आगे ही बढ़ाया। और अब उन्होंने तो इंडिविजुअल महंतों की जो फैमिलीज़ थी उनको भी पेट्रनाइज करना शुरू किया कि महंत और उनकी फैमिली की भी देख रेख हो जाए। उन्होंने जैन टेम्पल्स, शाहजहां ने तो, आज भी आप पुरानी दिल्ली जाएंगे, रेड फोर्ट के बिल्कुल, लाल किले के बिल्कुल सामने जैन मंदिर है। उधर उस कॉम्प्लेक्स में इतने जैन मंदिर हैं कि वो भी शाहजहां ने जब बुनियाद रखी लाल किले और शाहजहानाबाद की, तो उसको भी ध्यान में रखा, क्योंकि जैन मर्चेंट्स, उनका फाइनेंस बहुत सेंट्रल था मुग़ल इंडिया के लिए। वो फाइनेंसर्स थे मुग़ल पॉलिटिक्स के, पैसा देते थे वो बाकायदा स्टेट को, तो उनकी हिफाजत करना भी ज़रूरी रहा। यहाँ साइड में ये वृंदावन
का लैंड ग्रांट नहीं है, ये एक गुजरात का श्वेतांबर टेम्पल है, उसका ग्रांट है, उसका मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। साथ ही ना सिर्फ एम्परर्स बल्कि अब्दुल रहीम खाना जैसे नोबल्स, आमिर और दाराशुको जैसे बने नहीं वो बादशाह पर शहजादे थे, उन्होंने यहाँ पे चरई, जो हम भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, उस पर भी टैक्स लगता था, वो माफ़ करा दिया। तो एक कम्युनिटी ना सिर्फ टेम्पल नहीं, टेम्पल क्या है, स्ट्रक्चर है, अंदर तो लोग ही रहते हैं ना, आसपास तो लोग ही घूमते हैं, उनकी भी देख रेख करनी ज़रूरी होती है, उसको ध्यान में रखो। और ना सिर्फ उनकी देख रेख बल्कि जो हमारे पशु हैं उनकी भी देख रेख। अच्छा, एक और एग्जांपल हमें बहुत इंटरेस्टिंग मिलता है नेशनल आर्काइव्स की डॉक्यूमेंट से कि ख्वाजा गज्जाल जो शिकदार थे और शंकर दास, आप में से कुछ जो हिस्ट्री की तैयारी करते होंगे ये टर्म्स जानते होंगे, कारकून, ये सब क्लरिकल जॉब्स और स्टैटिस्टिकल सर्वेज, रेवेन्यू सर्वेज में इन्वॉल्व होते थे। इनके भी नाम हमें मिलते हैं कि ये बाकायदा वहाँ मौजूद थे जब लैंड ग्रांट्स बांटे गए, खड़े हुए उसी ज़मीन पे। इसका आपको अगर विस्तार से जानकारी लेनी है तो प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर तपन रे चौधरी, इनके आर्टिकल्स हैं, और एक नई स्कॉलर हैं स्वाति गोयल, वो भी इन पे काम करती हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं। सर हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो इसमें एक, मैंने अभी तक तो अकबर बादशाह, राजा मानसिंह का, राजा मानसिंह आमेर के रूलर थे और इनका तो मुग़ल परिवार से बिल्कुल खासा रिश्ता था, पब्लिसाइज मैरिजेस थी इनके घरों से, मुग़ल फैमिली में हुई थी, और ये बहुत बड़े आमिर थे, बिल्कुल रॉयल लेवल के जो रैंक्स मिलते थे, मनसब मिलते थे, उस पर इनको रखा गया। इन्होंने मुग़लों के लिए बिहार और बंगाल जीता भी, ऑर्गेनाइज भी किया, ऑर्गेनाइज यानी डिस्ट्रिक्ट्स लगाए, लोगों से जाके ट्रीटी साइन कराए, बड़े वॉरियर रहे। साथ ही ये बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे। इसका इन्फ्लुएंस आपको इस गोविंद देव टेम्पल और मदन मोहन टेम्पल में ही नहीं, बंगाल में भी मिलता है। 2 मिनट में आऊँगी। ये याद रखिए कि इनको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में संरक्षण, वो बहुत संरक्षण करते हैं पर इम्पीरियल लेवल की नहीं, एम्परर नहीं है, सब इम्पीरियल है, उनसे एक लेवल, एक दर्जा बस नीचे। पर इफेक्ट आप देखिए क्या आलीशान मंदिर है ये। सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाएं तो जैसे कि मैंने कहा कि ही वाज की इन कॉन्करिंग बिहार एंड बंगाल, और उनकी जो वैष्णव लीनिंग्स थी, विष्णु भगवान की जो उनकी भक्ति थी, उसने हेल्प किया क्रिएट करने में एक, जिसे अगेन टेक्निकल लैंग्वेज कह लीजिए या फैंसी लैंग्वेज कह लीजिए, एक कल्चरल सर्कुलेशन का कॉन्टेक्स्ट, एक कल्चरल सर्कुलेशन का एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजनल स्टाइल्स हैं, गुजरात के स्टाइल्स हुए, बंगाल के स्टाइल्स हुए, उसका एक उदाहरण है बिष्णुपुर का वो टेम्पल, उसका रूफ देखिए ऐसे स्लैंटिंग है, ये बन गए इंपीरियल स्टाइल्स। ये अब पूरे मुग़ल एम्पायर में जहाँ जहाँ मुग़ल गए, आज ही आपको दक्कन में भी मिलेगा, ये आपको सिंध में भी मिलेगा, है ये बंगाल से, ये आपको पंजाब में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा। तो ये इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बंगाल के टेम्पल से हर चीज़ में इंकॉर्पोरेट करनी शुरू की। आमेर में एक बंगाला रूफ, ऐसे वाला रूफ मिलता है, मोती मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ के टाइम की, उधर भी ये मिलता है, ऐसे छोटे झरोखे मिलते हैं, टेम्पल ब्रैकेट्स होते हैं, वो गुजराती आर्किटेक्चर है, उसको फिर वो अब आपको दक्कन में भी मिलता है, आगरा फोर्ट में भी मिलता है। तो ये एक बड़ा एक क्रॉस कल्चरल सर्कुलेशन जिसको कहते हैं वो हुआ, और मुग़ल इसमें इस कॉम्पोजिट प्लूरलिस्टिक जिसको हम कहते हैं सर्वधार्मिक, उसको एस्थेटिक्स को अब्जॉर्ब करने में कि हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको अब्जॉर्ब कर लो, इसको ले लो, उसमें ये इतने बहुत ही की प्लेयर्स रहे हमारी हिस्ट्री में। तो ये रही बात एक की एस्थेटिक्स की अप्रिसिएशन। दूसरी बात होती है नॉलेज की खुद की अप्रिसिएशन। आपने ठीक है, आपको चीज़ अच्छी लग गई, आपने लगा लिया, पर आप उस नॉलेज को भी वैल्यू देंगे ना। मतलब आप सिर्फ सीधा बिना कॉन्टेक्स्ट, बिना बैकग्राउंड के कोई चीज़ नहीं उठा लेते, आपको समझना पड़ेगा कि इसके मायने क्या हैं, ये क्यों लगाई जाती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी हमें मुग़लों ने दिखाई है। सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले अगर तो, हाँ, तो उसका मतलब है कि आप सिविलिटी दिखाएं, बस क्योंकि कोई आपके रिलीजियस बैकग्राउंड से नहीं, आप नहीं मानते कि हमारा ये जो इस भगवान को मैं मानता हूँ वो इनको नहीं मानते, और जिसकी इबादत हम करते हैं वो ये नहीं करते, तो हम मार काट देंगे। अगर ये होता तो एम्पायर्स कभी नहीं चलते।
अगर ये होता तो हिंदुस्तान वीराना होता, ये है नहीं। आपको यहाँ दो पिक्चर्स दिखेंगी, एक लेफ्ट पे है एलोरा का टेम्पल, आप जानते होंगे औरंगाबाद के पास है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज औरंगजेब ने अपना काफ़ी बड़ा करियर दक्कन में बिताया, रह गए लास्ट में वहीं दफन है आज खुलदाबाद में, लेकिन वो गवर्नर भी रहे जब बादशाह बने नहीं थे। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने एलोरा के लिए कहा कि ये है मार्वल्स ऑफ द ट्रू आर्टिस्ट, मतलब उस आला फनकार की ये बनाई हुई चीज़ है, ऐसे शिल्पकार की, यानी ऊपर वाले की, कि ये तो मतलब इंसानी है ही नहीं। और ना सिर्फ औरंगजेब, रफ़ीउद्दीन शिराजी थे, वो ईरान से आए थे, पहले अकबर के यहाँ थे, फिर दक्कन की सल्तनतों में रहे काफ़ी दिन। उन्होंने एक अच्छी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल भी लिखी है, तज़किरातुल मुलूक। हाँ, उन्होंने भी इसके बारे में बाकायदा पूरा अकाउंट दिया, लोगों को एक ट्रैवल डिस्क्रिप्शन दिया कि यहाँ जाएंगे तो ये देखिएगा, वहाँ जाएंगे तो ये देखिएगा, ऐसे समझाया। ये पढ़ने के लिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ओम प्रकाश की किताब आप ही की लाइब्रेरी में है। डॉक्टर प्रोफेसर ओम प्रकाश पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं, कल मुझे शाइस्ता मैम ने ही ये बताया, और कल हमने किताब भी देखी। और कार्ल अर्न्स्ट, वो अमेरिका में पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत टाइम, अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम तो उन्होंने बीजापुर और दक्कन में ही बिता दिया। उनकी ये किताबें हैं, आप ट्राई करिएगा पढ़ने का। दूसरी साइड आपको दिखता है जहांगीर विजिटिंग जादू, ये पेंटिंग है पेरिस में। ऊपर आपको दिखते हैं, जहाँ शायद आप लोगों ने देखी भी हो, वाकिफ हो, ऊपर आपको दिखते हैं जहांगीर जाके इस गोसाई से खुद मिले, जाकर इसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा हुई। इस पेंटिंग का फॉर्म बहुत अच्छा है, ऊपर सिर्फ, नीचे एक भीड़ है, सारे नोबल्स हैं, घोड़े हैं, सब कुछ है, ये एम्बलम्स हैं मुगलों के, सब कुछ है जो एक इम्पीरियल जलसे में होता है। ऊपर सिर्फ दो लोग हैं, गोसाई जादू और जहांगीर, कुटिया में बैठी हैं एकदम शांत, उस कुटिया में कुछ नहीं है। वो दिखा रहे हैं, शायद हिस्टोरियंस का मानना है कि ये दोनों तो दुनियावी बातों से ऊपर उठ गए, इस मोमेंट में ये बिल्कुल अलग हो गए। नीचे ये सब चलता जा रहा है, ऊपर ये अलग बड़ी बातें हैं, जो दीनी बातें हों, जो आती हैं दुनिया में कभी कभी, पर इस मोमेंट में, इस एनकाउंटर के इस पल में ये दोनों एक ऐसे रेल में पहुंच गए, एक ऐसे आलम में पहुंच गए जहां ये चीज़ें बहुत छोटी रह गई, सियासी बातें और ये सब। तो ये मैंने सोचा कि आपके सामने लाना थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका मुझे यही बोलना था कि पेट्रनेज का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मैंने एक नई चीज़ खड़ी कर दी। पेट्रनेज के पीछे बैकग्राउंड में और इतनी चीज़ें होती हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। ये कभी नहीं रहा कि किसी भी एम्पायर में, हमारे घरों में होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मैं तो हर दिन अपने वालिद साहब से मेरा झगड़ा हो जाता है, तो होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सुलह नहीं हो सकती। तो बड़े एम्पायर्स में भी होता है, पर उसकी एक लंबी हिस्ट्री पेट्रनेज की भी होती है, वरना नहीं चलते हैं इतने बड़े एम्पायर्स। इस टॉक से सर नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ये आपको सारे एग्जाम्पल्स देने का मेरा बस ये, अगर आप मुझसे पूछें या मैं आपसे कहूँ कि अच्छा तुम गए थे स्टॉक में, गुड़ तत्व क्या था, क्या बोला इन्होंने, 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, फर्स्ट एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे अगर मैं हुज्जत के तौर पे आपके सामने पेश करूँ कि पेट्रनेज को चाहिए होती है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, उसी से टॉलरेंस आती है, सिविलिटी आती है। आप बाकायदा सामने वाले, आप शायद अग्री बिल्कुल ना करें उनकी बातों से, पर उनको आप उनकी बातें सुनेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, शायद समझने की भी कोशिश करेंगे। और मुगलों ने इसका बड़ा अच्छा, मतलब इतने साल, 2 सदियाँ, 2.5 सदियाँ अच्छे से इसको दिखाया। उसमें चेंजेस भी आते हैं, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीज़ें, सब अपने ही हिसाब से करते हैं। हम शादियों में जाते हैं, कोई 500 का शगुन देता है, कोई 11 रुपये का दे देता है, तो सब अपने हिसाब से अपने दायरे पे करते हैं। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है, और बहुत मैं आर्ग्यू करूँगी कि बहुत ज़रूरी है, इस्लाम और इंडिया दोनों ने एक दूसरे को बखूबी शेप किया है।
अगर इस्लाम नहीं होता इस सब कॉन्टिनेंट में तो ये सब कॉन्टिनेंट बहुत अलग दिखता, और अगर इंडिया नहीं होता तो इस्लाम बहुत अलग दिखता। ये सब लोगों ने इंडिया से बहुत चीज़ें सीखी हैं जो आए थे, जैसे रफ़ीउद्दीन शिराजी, और इंडियंस ने भी इस्लाम को बहुत कंट्रीब्यूट किया। हमारे सारे मुगल बादशाहों ने, उनके सारे सब इंपीरियल नोबल्स ने। ये हमें ये दिखलाता है कि जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हम आज देख रहे हैं, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, जिस भी तौर पे हिंदुइज्म जिसको हम कहते हैं, इस्लाम हो गया, सिखिज्म हो गया, ये सारे दूसरे से शेप हुए हैं। ये अलग अलग नहीं बन पाए हैं कि हाँ हम सब अलग अलग कमरों में बंद हैं और 1000 साल बाद उभर के हमको बन गए हैं जो हैं। नहीं, ये सब एक दूसरे से शेप हुए हैं। हमेशा एक डायलॉग है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, पर ज़्यादातर टॉलरेंस और एक प्लूरलिज्म, मल्टीफेथ ट्रेडिशंस रहे हैं जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं। ये मैं हवा की बातें नहीं कर रही क्योंकि ये सुनने में अच्छी लगती हैं। हमारे पास बाकायदा प्रमाण है कि एम्पायर चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और एक जेन्युइन अप्रिसिएशन ज़रूरी होती है, जिसका प्रमाण हमें मुगल देते हैं। और उसका प्रमाण हमारी इन लाइब्रेरीज़ में, जैसे खुदाबख्श लाइब्रेरियाँ, खानदान तैमूरिया जैसी उम्दा मैन्यूस्क्रिप्ट है, लोग दूर दूर से हर मुल्क से देखने आते हैं। नेशनल आर्काइव्स है, सालार जंग म्यूज़ियम है, हमारे अपने ही देश में इतने धरोहर हैं, हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू। Any questions, please? Anybody? Please. प्लीज़ आप अपने Hello. Good morning. My name is Sheikh Kumar Shah. Actually, I have one question, man. You give some very topic. Actually, मैम आपने उसका सब कुछ मेरिट चीज़ बताया और कुछ आप उससे आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी एम्पायर का कुछ मेरिट भी होता है, कुछ डिमेरिट भी होता है। अब मैम मेरिट बताएं, कुछ डिमेरिट है। अब ये भी एक टॉपिक के लेकर चले मैम कि जो कल्चरल चेंज होता है तो चेंज होने के बाद उससे भी हम सीखते हैं और हमसे भी वो सीखते हैं। मैंने भी सीखा और मेरे पूर्वजों ने भी सीखा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को कुछ डिमेरिट चीज़ भी बताइए, क्योंकि मेरिट के साथ साथ डिमेरिट भी जानना जरूरी है ताकि हम उनसे उस चीज़ को इग्नोर करके आगे सीख सकें। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया। मैं थोड़े और Please come. और questions अगर हो तो आ जाइए, पूछिए। Related to the talk only. बैठ जाइए। Just a second. नाम बता देना। Rajiv Chatterjee. I am also pursuing PhD in political science. I wanted to ask one question: how far our patrones are relevant in the contemporary world, particularly in social, economic, political, and other aspects of life? Don't you think that if you are losing our patronage, then we are losing a great heritage, which are meant for the emancipation of mankind, right? We have got a new direction, new life, a new system, a new tradition, culture, philosophy. So how far is it relevant in contemporary world? And what should we do to protect it? And send this idea in different parts of the world for making a good world when the world is globalized. In the present day of globalization, our patronage has a very great relevance in making a new world, and particularly India, which have a very pivotal place, important place in the world, and because it is revered and respected worldwide, entire world respects our nation, particularly for our patronage, particularly for our traditions, cultures, philosophy, which have been coming since ancient times, since time immemorial. So what should we do? And these have a relevance in our socio-political life, economic life, cultural life, and other aspects of life. And give some explanation. थैंक यू। आदाब, मैं अल्ताफ अहमद रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी। मैं अल्ताफ अहमद, मैं लाइब्रेरी आया था और खुशकिस्मती से यहाँ बहुत अच्छा लेक्चर सुनने को मिला। आपका काम मैम तारीखी नोयत का है। वाकई जो कल्चरल एक्सचेंज की आपने बात की है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ है
अगर इसको मज़ीद कोई पढ़ना चाहे या देखना चाहे तो कौन से ऐसे मखलूक़ात हैं, ऐसे कुतुब हैं या ऐसे कंटेक्स्ट हैं जहाँ हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है इनकी रेफरेंसेस क्या हैं, आपने कुछ माइनर रेफरेंसेस का जिक्र किया है, मज़ीद अगर रेफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम भी उससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम रुपेश कुमार, अपना सुबह साकार। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैम कि जैसे आपने बोला कि मुग़ल ने ये बनाया, मुग़ल ने ये किया, मुग़ल ने ये किया, ठीक है किया, लेकिन सीखा किससे? ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने हमसे सीखा, क्योंकि पहले राष्ट्रकूट थे तो वो लोग भी पहले बनाए, इलोरा कैसे बनाए, उनसे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। इल्तुतमिश खुद जब आए तो उन्होंने बस गुंबद बनाना सीखा था, उसके बाद ही सब चीज़ बना। जैसे बहुत सारे भूमि मापन के तरीके हुए हैं तो वो सिंधु सभ्यता से बिलोंग करते थे, तो धीरे धीरे वो सीखते सीखते हैं। तो ये चीज़ क्या कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने किया, ये कहना सही होगा कि उन्होंने सीखा, इस तरीके से सीखा, इनसे सीखा। जैसे हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, लुसेंट में दिया भी हुआ है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। वो भारत का खोज नहीं किया था, उससे पहले भी इथ्रियंसी जो बुक है उसका लेखक का नाम नहीं मालूम को, तो उसमें उसका बुक का नाम नहीं मालूम, सॉरी लेखक का नाम नहीं मालूम, उसमें भी ये दिखाया गया कि किस तरीके से बंदरगाहों से मतलब आयात निर्यात होता रहता था। तो इस चीज़ को करेक्शन कौन करेगा? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या किसी गलत तरीके से हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसको सही कौन करेगा? तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसको करेक्ट करें आगे चल कर। Thank you very much, Ms. Das. That's such an informative talk. And this question answer session produces much more relevant points. Interaction is very essential. That creates an aura of much more better atmosphere also. So we were talking about cultural assimilation. This assimilation of culture resulted in the composite culture. और ये हिंदुस्तान आज सिंबलाइज करता है दुनिया भर के लिए, एक बहुत बड़ा अहम निशान है, ये सिंबॉलिक है कंपोजिट कल्चर के लिए। बहुत कुछ यहाँ सीखा भी गया, बहुत कुछ सिखाया भी गया। बाहर से आने वालों ने यहाँ बहुत कुछ दिया भी और बहुत कुछ लिया भी, और इसी ने ये कंपोजिट कल्चर प्रोड्यूस किया। आर्ट एंड लिटरेचर में भी देख लीजिए, पोइट्री में, यानी सारे स्फीयर्स में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज, पोइट्री, ख़ास तौर पे ये जो सूफीज़ आए उन्होंने जो एक माहौल क्रिएट किया खूबसूरती का, मोहब्बत का, जिसका आज तक हम लोग गान गाते हैं और याद करते हैं, और रह रह के ये है सूफिस्टिक ट्रेडिशंस को हम लोग अपनाएं और उसको और प्रमोट करें, which is so essential to bring the communities closer, and bringing the communities closer is in the interest of our nation. To bring and to make the nation intact, it's so essential. So we should, I think it's better to talk and memorize the things which are positive, of love and affection, of closeness. डीमेरिट्स की बातें दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए, हमें आपको मेरिट्स को दोहराते रहना चाहिए। आपकी, हमारी, पिछले तमाम रूलर्स की, चाहे वो मुगल्स रहे हों या मौर्यंस रहे या गुप्तास रहे हैं, जो भी whoever, why not to remember them in their positive aspects? तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर हम याद करते रहेंगे, that creates a much better feeling in our hearts. एक दूसरे को करीब लाने के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखना और याद करना ही बहुत ज़रूरी है। डीमेरिट्स और बुरी फीलिंग्स और तकलीफ दे बातें दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको दरगुजर करके हम लोग आगे बढ़ते चलें
तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन and to bring the societies and the communities closer. The library has been acting in this way, on this path. It has been translating a number of works related to interfaith understanding and socio-communal harmony. आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं और हमारी पब्लिकेशन की वेबसाइट पे भी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं। जो लेक्चर्स होते हैं उनका भी लुब-ए-लबाब यही होता है, उनका भी आखिर इसी पे निकलता है, कंक्लूजन्स यही होते हैं कि किस तरह हम लोग करीब आते चलें, करीब लाते चलें और मोहब्बतों को परवान चढ़ाते चलें, ताकि हमारा मुल्क जो है और इंटैक्ट और मजबूत होता रहे और तरक्की की राहों पर गामजन होता रहे। इसी रास्ते पे हम लोगों को आगे चलना भी है और आप लोगों को भी इसी रास्ते को अपनाना है। ये सारे लेक्चर्स जो हैं, डिफरेंट लेक्चर्स हैं और एग्जीबिशंस हैं, उनका मकसद भी यही होता है कि आपको एजुकेट करते चलें और अच्छी ट्रेडिशंस इनकलकेट करते चलें, अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करते चलें। खुदाबख्श लाइब्रेरी इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज and it contains a number of manuscripts and rare books on all such subjects which are so relevant today. Though science and technology and IT is so essential, but to make the mind and heart and soul human, इंसानियत से पूर्ण दिल दिमाग को रखने के लिए, बनाने के लिए ये आर्ट एंड लिटरेचर बहुत ज़रूरी है। पोइट्री बहुत ज़रूरी है, जो आप हमारे यहाँ खुदाबख्श लाइब्रेरी में पाएंगे, उसके रीसेंट पब्लिकेशंस में देखेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू खुदाबख्श लाइब्रेरी एंड इट्स कल्चर हेरिटेज which is being preserved since long. And this lecture is also a result of the researches which are going on in this library. Thank you very much, all of you. Jai Hind.